Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you chemistry. आज lecture में chapter number 5 first chemistry जा बाकी जेके remaining last topics we discuss करना सी तो let's start. Isobaric process. Previous lecture में जेको है isochoric discuss कयो सी तो अॼु जे lecture में आहे isobaric process at constant pressure ते discuss करना सी. At constant pressure ते your process हूंदो आहे. Heat supplied at constant pressure is also known as isobaric process. Heat जेका हूंदी आहे उहा सप्लाई कई वेंदी आहे constant pressure ते त उन process खे छा चयो वेंदो आहे isobaric process. An isobaric process is one in which no pressure change takes place during the supply of heat to system. Isobaric process अहिड़ो process हूंदो आहे जंहिंमें pressure में का changing ना ईंदी. या heat during the supply of heat to system जॾहिं system खे heat supply कंदा आहियूं त isobaric process अहिड़ो process हूंदो आहे जंहिंमें pressure में changing ना ईंदी. In order to understand an isobaric process, consider a cylinder fitted with a frictionless piston. अगर इन process खे understand करण जे लाइ छा थींदो त cylinder खे fitted कबो frictionless piston सां. The piston is free to move and piston जेको हूंदो उहो free to move हूंदो. In ideal case is enclosed in the cylinder. Ideal case जेका आहे हुन में close कबी cylinder में. Figure representation. Let the internal energy of the system जेका internal energy आहे system जी उहा कहिड़ी आहे E1 आहे. The temperature of the system T1 volume temperature जेको आहे initial temperature T1 आहे ऐं volume जेको आहे उहो V1 आहे and pressure छा आहे P. If QP amount of heat is supplied to the system, अगर उन में system में तो heat जेका supply थी कई वञे, its internal energy will increase from E1 to E2. त उन जी छा थींदी कि internal energy increase थींदी E1 मां E2 थी वेंदी. And the temperature also temperature of the system also rises from T1 to T2. उन जो temperature भी increase थींदो T1 मां T2 थी वेंदो. At the same time, gas exerts some pressure on the piston. साॻे टाइम में gas जेका आहे उहा exert कंदी pressure piston ते. Since the piston is free to move, piston जेको आहे उहो free to move थी वेंदो. It displaces by h, जो displaces थींदो by h the volume of gas. Volume जेको आहे increase थी वेंदो gas जो V1 मां V2 थी वेंदो. Due to increase in volume, pressure again decreases. Volume increase थींदो त pressure छा थी वेंदो decrease थी वेंदो to its original value, that is P1 ते अची वेंदो. The चए थो कि let the internal energy of the system and system जी internal energy E1 आहे ऐं temperature जेको आहे T1 आहे ऐं volume जेको आहे V1 आहे ऐं pressure जेको आहे P आहे. अगरि उन सिस्टम में जेका हीट सप्लाई थी कई वञे कुझु अमाउंट हीट सप्लाई थो कयो वञे त उन सां छा थो थिए कि उन जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ थी थिए E1 मां E2 थी वञे ऐं टेम्परेचर जेको आहे T1 मां T2 थो थी वञे. ऐं गैस जेका आहे उहा एक्सर्ट करे थी प्रेशर पिस्टन ते त पिस्टन जेको आहे सो उहो फ्री टू मूव थो थिए ऐं डिस्टेंस तय थो करे. उन सां छा थो थिए कि वॉल्यूम इंक्रीज़ थो थिए V1 मां V2 थो थी वञे. उन सां वॉल्यूम अगरि इंक्रीज़ थो थिए त प्रेशर घटिजी थो वञे. बॉयल्स लॉ जो स्टेटमेंट पढ़ो कि वॉल्यूम जेको आहे उहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हूंदो आहे प्रेशर जी. अगरि वॉल्यूम इंक्रीज़ थींदो त प्रेशर डिक्रीज़ थींदो ऐं प्रेशर जेको आहे ओरिजिनल वैल्यू ते ईंदो P1 ते थी वेंदो. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जे हिसाब सां इक्वेशन हीअ ऑप्शन थींदी कि डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन आहे. Q जेका आहे इक्वल थी वेंदी डेल्टा ई प्लस वर्क जेको आहे उहो P डेल्टा V जे इक्वल आहे. Therefore QP equal to delta E plus P delta V, but delta E equal to आहे E2 minus E1 जे. QP equal to थी वेंदो डेल्टा E ओपन करे इक्वेशन खे रखंदासीं E2 minus E1 प्लस P ते सेम ऐं डेल्टा V जो मतिलबु आहे V2 minus V1. चेंज इन वॉल्यूम त फाइनल वॉल्यूम मां माइनस कंदासीं इनिशियल वॉल्यूम. Therefore QP equal to थी वियो हिन P खे हिन इक्वेशन सां मल्टीप्लाई कंदासीं E2 minus E1 E प्लस P खे V2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त PV2 माइनस P ऐं P खे P1 सां कंदासीं त P1 V1 थींदो. उन खां पोइ कि QP equal to E2 plus PV2 plus N2 minus
माइनस जेके टू वारा फाइनल जेके इन स्टेट्स उहे इक्वेशन खे अरेंजमेंट कंदासीं। टू वारा जेके आहिनि उहे इन साइड थी वेंदा ऐं वन वारा हिन साइड थी वेंदा। इन खां पोइ क्यू पी इक्वल टू ई टू प्लस पी वी टू माइनस ब्रेकेट में कंदासीं ई वन प्लस पी वी वन डॉट ई प्लस पी वी इक्वल टू आहे एच जे एच आहे एंथैल्पी आहे देयरफॉर क्यू पी इक्वल टू थी वेंदो डेल्टा एच डी या वरी क्यू पी इक्वल टू थी वेंदो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एच डी। Conclusion: this expression indicates that the heat supplied at constant pressure is equal to increase in enthalpy of system. इहो एक्सप्रेशन जो आहे इंडिकेट करे थो कि अगरि हीट सप्लाई था कयूं कांस्टेंट प्रेशर ते त उहा उन सां छा थो थिए कि उहा इक्वल थी वञे, उन सां एंथैल्पी जेका आहे सिस्टम जी उहा इंक्रीज़ थी थिए। इहो एक्सप्रेशन माना इंडिकेट करे थो कि हीट अगरि सप्लाई थी कई वञे थी सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर ते त उन सां एंथैल्पी चेंज थी थिए, एंथैल्पी इंक्रीज़ थी थिए माना। Okay, next topic is Hess's law of constant heat summation. Hess's law of constant heat summation. Let's discuss it. Introduction. Heat absorbed or evolved in a certain reaction is equal to the difference of the intrinsic energies of reactants and products. Heat जेका है वो absorb थी थिए या evolved थी थिए कहिड़े बि रिएक्शन में त उहा इक्वल थी थिए जेका एनर्जी डिफरेंस जे reactants जे एनर्जी डिफरेंस जे ऐं प्रोडक्ट्स जे। No matter in what manner the reaction is carried out. इहो माना कहिड़े बि मैटर में माना रिएक्शन जेको आहे उहो carried out थिए थो। In the light of this fact, the Hess's law stated is इन हिसाब सां Hess's law खे हीअं स्टेट थो कयो वञे। स्टेटमेंट आहे the amount of heat evolved or absorbed in any chemical reaction is constant and is independent of the method followed. Amount of heat जेको आहे उहो evolve थो थिए या absorb थो थिए। हीट evolve थी थिए निकिरे थी या absorb थी थिए कहिड़े केमिकल रिएक्शन जे दौरान। केमिकल रिएक्शन जे दौरान अगरि उहो कांस्टेंट आहे त उहो इंडिपेंडेंट आहे जेको उन मेथड फॉलो थो करे उनजे। In other words, ॿी डेफिनेशन ईअं चई सघो था the change in enthalpy in any chemical reaction is constant। जेका कहिड़े बि केमिकल रिएक्शन में जेका एंथैल्पी में चेंजिंग अचे थी त उहा छा आहे उहा कांस्टेंट रहे थी and is independent whether the reaction takes place in one step or in many steps। त कहिड़े बि केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी में अगरि चेंजिंग अचे थी त उहा कांस्टेंट रहे थी, चेंज उनजो कांस्टेंट रहे थो ऐं उहो जेको आहे सो आहे इंडिपेंडेंट आहे। रिएक्शन अगरि भले हिकु स्टेप में थिए थो या हिक खां वधीक स्टेप्स में थिए थो त उहा एनर्जी जेका आहे उहा इंडिपेंडेंट आहे। अगरि उहो रिएक्शन वन स्टेप में थिए थो या हिक खां वधीक स्टेप्स में थिए थो, मेनी स्टेप्स में थिए थो। Explanation: Consider a system chemical whose initial and final states are represented by A and E respectively। Consider कयो कि सिस्टम में जेका आहे हिनजी इनिशियल ऐं फाइनल स्टेट्स खे रिप्रेज़ेंट कयो थो वञे A and E सिंबल सां। The change from A to E may takes place in single step। जेको चेंजिंग अचे थो A to E खां उनखे स्टेप सिंगल स्टेप में ॾेखारियो वियो आहे A खां E ताईं जेको हुन में चेंजिंग अचे थो। In single step change in enthalpy is single step में जेका चेंजिंग थी अचे उहा DH आहे। This change of reactant A to product E may take place in more than one step। इहो जेका चेंजिंग आहे उहा हिक खां वधीक स्टेप में थी सघे थो। फॉर एग्जांपल A to B जेको आहे चेंज डेल्टा H1 आहे, B to C आहे डेल्टा H2 आहे, C to D डेल्टा H3 आहे एंड D to E जेको आहे डेल्टा H4 आहे। According to Hess's law of constant summation जे हिसाब सां DH इक्वल टू थी वेंदो मतलब चेंज इन एंथैल्पी जेको आहे DH1 2 3 and 4। Example number 1, consider the reaction between sulfur and oxygen which is exothermic in nature। Consider कयो अगर रिएक्शन थिए थो सल्फर ऐं ऑक्सीजन जे विच में ऐं उहे एक्सोथर्मिक इन नेचर आहिनि। In this example, formation of sulfur trioxide takes place in two steps। इन एग्जांपल में छा थो थिए कि फॉर्मेशन थिए थी सल्फर ट्राइऑक्साइड जी ॿिनि स्टेप्स में। In the first step, sulfur reacts with oxygen to produce sulfur dioxide। पहिरें स्टेप में छा थो थिए सल्फर रिएक्ट थी करे ऑक्सीजन सां ऐं प्रोड्यूस करे थी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जेका आहे ऑक्सीजन सां रिएक्शन करे थी ऐं सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस थी करे। चेंज इन जेका एंथैल्पी आहे उहा -70.96 किलो कैलोरी पर मोल आहे।
इन द नेक्स्ट सेकंड स्टेप में जेको आहे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करे थी वधीक मोर विथ मोर ऑक्सीजन सां टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस थी करे त डेल्टा डी एच टू जेको आहे उहो -23.47 किलो कैलोरी आहे टोटल चेंज इन एंथोल्पी जेका आहे उहा डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच टू कंदासीं त डिफरेंस मालूम कंदासीं चेंज इन हीट जो 70.96 मां माइनस कंदासीं 23.49 त जेको डिफरेंस ऑप्टेन थियो टोटल चेंजिंग आई -94.45 किलो कैलोरी थियो We can also prepare sulfur trioxide in one step is shown by the equation. इन खे जेको आहे one step में प्रोड्यूस करे सघूं था जीअं equation में shown कयो आहे डायरेक्टली जेको आहे करे सघूं था प्रोड्यूस इन द डायरेक्ट वन स्टेप प्रिपरेशन डायरेक्ट स्टेप में चेंज इन एंथैल्पी जेका आहे उहा 94.45 किलो कैलोरी पर मोल आहे This clearly indicates that the change in enthalpy for the preparation of sulfur इनमां इहो ज़ाहिर थियो कि जॾहिं सल्फर खे ॿिनि स्टेप्स में कयोसीं त चेंज इन जेको एंथैल्पी आयो उहो सेम ऑप्टेन थियो 94.4 किलो कैलोरी पर मोल डिफरेंस ऑप्टेन थियो अगरि इनखे हिकिड़े ई स्टेप में प्रिपेयर कयोसीं त उन में बि चेंज जेको आहे एंथैल्पी जो उहो सेम ऑप्टेन थियो Therefore, it indicates that the change in enthalpy for the preparation of sulfur trioxide is constant. इन जे करे इन मां इहो इंडिकेट थियो ज़ाहिर थियो कि चेंज इन एंथैल्पी जेको आहे सल्फर ट्राइऑक्साइड जी प्रिपरेशन में एंथैल्पी में उहो कांस्टेंट रहियो सेम रहियो एंड इज़ इंडिपेंडेंट टू द प्रोसीजर फॉलोड प्रोसीजर जेको फॉलो कयो वियो उन जे इंडिपेंडेंट रहियो दिस इज़ लॉ ऑफ हीट समेशन जो मतिलबु इहो आहे कि उहो लॉ इहो थो चवे कि कहिड़ो बि रिएक्शन केतिरनि स्टेप्स में थिए पर चेंज इन एंथैल्पी जेका आहे उहा कांस्टेंट रहंदी उहा सेम रहंदी आइदर उन रिएक्शन खे हिकु स्टेप में कयो वञे ॿिनि में कयो वञे या ॿिनि खां वधीक स्टेप्स में कयो वञे त अॼु जो जेको आहे लेक्चर में असांजो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कयोसीं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कंदासीं मुंहिंजे चैनल खे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो बेल आइकॉन बटन जेको आहे प्रेस करणु न विसारियो त जीअं नेक्स्ट लेक्चर अचे थो तव्हांखे उन जे ज़रिए अपडेट मिली वञे अने फ्रेंड्स में शेयर कयो ऐं कमेंट्स में कमेंट्स कयो त Okay, Allah Hafiz. Here we are ending our lecture.